all of you. Namo Namaha once again. Finally, we are starting with the lecture and we are continuing the same part, that is Varnanam Sahacharyam. I hope you remember that we are dealing with the sandhis and the rules of sandhis. Just let me know, am I audible to you? Okay, thank you. So, now we are going to move ahead with the sandhis and some different rules of sandhis. Okay, so your participation is highly important. So keep answering in chat box. We have already seen that there are three types of sandhis: swara sandhi, visarga sandhi, and vyanjan sandhi. And which sandhi we are dealing with? Are we dealing with visarga sandhi or vyanjan sandhi or swara sandhi? Quickly tell me. Which type of sandhis we are learning from previous lectures? Swara sandhi, Saujanya, perfect answer. Yes, Tirtha, Harshit, perfect answer. We are dealing with a swara sandhis and not visarga and vyanjan. Visarga और व्यंजन तो अभी हमें सीखना है, वो तो हमने सिर्फ lessons में देखा है. But finally we are dealing with swara sandhis, the rules of swara sandhis. And स्वर क्या होते हैं students? Vowels. Vowels मतलब अ, आ, ई से लेकर ऐ, औ, अहम, आहा तक सब स्वर होते हैं. Yes, so देखते हैं अभी ये स्वर के साथ combinations क्या क्या बनते हैं. Let's move ahead. And we already know that there is one sandhi called as savarna dirgha sandhi. Now what is savarna? Quickly tell me. Savarna means similar or dissimilar? Similar. Perfect par. Yes, Saujanya, right. So students, here we are dealing with the sandhis which are of vowels. They are from a similar family. मतलब अ का भाई आ, ई की बहन ई, दीर्घ ई, ऊ का भाई दीर्घ ऊ, and रू का भाई दीर्घ रू. तो simply they are twins and we are dealing with the same similar family sandhis. And उनको ही हम क्या बोलते हैं? सवर्ण दीर्घ संधि. Why दीर्घ? Because always any combination of a or a, e or e, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व रू and दीर्घ रू finally results in elongated vowel. Okay, तो कोई भी combination बना लो, हमारा आंसर हमेशा elongated होगा. Elongated मतलब रू, उ, ई और आ, हमेशा जो डबल वॉवेल है, जो दीर्घ वाला वॉवेल है, वही आंसर में आएगा. वेरी गुड, यू आर आंसरिंग परफेक्ट. ओके, सो हमने वहां पे संधीज देखे थे. पहला था एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ और आ फाइनली रिजल्ट्स इन आ. तो आप देख सकते हो नास्ती वाज द एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. देन वी हैव रवींद्रः, इट इज द एग्जांपल फॉर ई कॉम्बिनेशन. देन वी हैव भानुदयः, ओके, सेम एज सूर्योदय. सनराइज को ये बोलते हैं भानुदयः. So that is a combination of rasva and dirgha u. Finally, we have seen ru and ru. And remember students, the dirgha ru is new vowel in Sanskrit. ये दीर्घ रू हमें किधर भी नहीं दिखता है, ना मराठी में ना हिंदी में. But in Sanskrit we have two rules, the short ru and the long ru. Very good. So you have already written the rules of Savarna Dirgha Sandhi. Now quickly move ahead. No, you don't have to write down now. Now you have to move ahead and write down the new rules. अभी यहाँ पे completely सबका focus होना चाहिए on the pink as well as green brackets or boxes, you can say. So pink boxes are correlated with green boxes. I'm repeating it again, students. Pink boxes are correlated with the green boxes. मतलब ये दोनों का कुछ ना कुछ relation है. क्या relation है? चलो find out करते हैं. पहले I will explain it and then I will do it some calculation on whiteboard. Okay. I hope my voice is clear. तो फर्स्ट है द संधि ऑफ अ एंड ई. अभी देखो ये जो अ है, अ इज फ्रॉम डिफरेंट फैमिली एंड ई इज फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. तो अभी हम डील करने वाले हैं विद द संधिज व्हिच आर फ्रॉम दिस सिमिलर फैमिली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस सिमिलर फैमिली आई एम सेइंग, मतलब दोनों भी अलग अलग घर से आए हुए फ्रेंड्स है. दे आर नॉट ट्विंस नाउ, भाई बहन नहीं है या फिर भाई भाई नहीं है, दे आर नाउ फ्रेंड्स.
अलग अलग फैमिली में से है. सो अ एंड ई जब कंबाइन हो जाते हैं तब हमें मिलता है ए. यस, वेरी गुड याशिका, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. तो सिंपली अभी अ एंड ई को कंबाइन करेंगे. सो नाउ वी आर गेटिंग अ वॉवेल ए. ए मतलब मात्रा. सो यू कैन ऑब्जर्व इन द example that gana plus ishah. Gana ends in a and next word ishah starts with e students. So a plus e becomes a and hence you can observe that the answer is Ganeshah. What is Ganesha? It is a name of Lord Ganpati. We all know that. And what is the meaning of this word Ganesha? Isha means God. Okay, and Gana means people. So God of or Lord of all the peoples is Ganpati. And hence गणपति को नाम दिया है गणेश. So अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत words are not just a combinations or not just a sandhis, they are a meaningful words. Okay, so गण plus ईशः is equal to गणेशः. हमें रूल क्या मिलता है? a plus e is equal to a. चलो अभी नेक्स्ट कॉलम जो हम देखने वाले वो सीधा वही ब्रैकेट के नीचे जो ब्रैकेट है बॉक्स है वो हमें देखना है. दैट इज द संधि ऑफ सदा एंड एव. ग्रीन वाला बॉक्स अभी देखो लेफ्ट साइड. Am I audible to you? Please check my voice. Path, I'm audible. Am I audible clearly? Okay, thank you Path. Yeah, Ayush, thank you. Yes, we'll move ahead. So we are discussing the green box. यहाँ पे the vowel a and a, they are saying that avayyoho sanyogena ai iti sandhi rupa adesha. What is sanyoga? Sanyoga means combination. जब a and a मिक्स हो जाते हैं तब हमें मिलता है आई. अभी ये कहाँ से आया? तो सिंपली स्टूडेंट्स अभी अभी हमने a को फॉर्म किया था. इफ यू रिमेम्बर इन द पिंक बॉक्स अबव, पिंक बॉक्स में हमने क्या क्या फॉर्म किया? अ प्लस ई बन जाता है ए. गणेश हमें ए हमने फॉर्म किया. अभी वही ए को यूज करेंगे एंड देन विल फॉर्म आई. आई कैसे फॉर्म होगा? तो आ प्लस ए इज इक्वल टू आई. एंड हेंस यू कैन ऑब्जर्व द एग्जांपल गिवन ऑन द स्क्रीन इज सदा प्लस एव. Sada, the word sada sounding a at the end, and next word eva starts with a, so the answer is sadaiva. A plus a becomes I. I means दो मात्रा. Please observe it. A and I में फर्क होता है students. A is only single मात्रा and I is double मात्रा. तो ये पिंक एंड ग्रीन बॉक्स का कोरिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? अभी आप बता सकते हो? Quickly tell me what is the relation between pink and green box? Yes, you have spotted it correctly. I'm sure you have spotted it correctly. First pink box is rasva, short vowel, and the green box is long vowel. Arman, please type your answer, which will be meaningful answer. Okay. Yes, so pink box में हमें short vowels मिल रहे हैं like a, and green box में उसका ही elongated vowel है, that is I. Yes, the correct answer. अभी राइट साइड में देखते हैं अगेन अ पिंक बॉक्स. देयर वी हैव टू मिक्स अ एंड उ. अ एंड उ को अगर हम मिक्स करेंगे तो हो जाएगा ओ. ये सेम रूल हमने देखा था समय में. डू यू रिमेम्बर द समय अ एंड उ? क्विकली टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ अ एंड उ जहां पे हमने मिक्स किया था. It's okay, Arman. Just now give me the answer. Very good, Tirtha. The answer is Panchona or Dashona. So students, यहाँ पे पंच and una becomes पंचोन. A plus u becomes o. Likewise, यहाँ पे भी lamba plus udarah becomes lambodarah. The another name of Lord Ganpati or Lord Ganesha. Students, here you can observe lamba means big and udara means belly. So the one having a big belly is called as lambodarah. Isn't it fantastic? So यहाँ से आपको पता चलता है कि again I am saying कि repeating again and again कि संस्कृत के संधिस जो होते हैं that is not just a mixture. Okay, meaningless mixture नहीं है, वहाँ पे meaningful mixture होता है, and hence we get many new words from it. The vocabulary is increasing day by day with the sandhis and samas. Oh, that's funny, Tirtha. But actually the word Lambodara is for Ganesha. The one having a big belly is Lambodara. It is the name of Ganesha, and you can observe the word
ends in a, next word starts with o, so the answer is o. चलो अभी इसका ही elongated form नीचे देखते हैं. o तो फॉर्म हो गया, अभी हमें क्या फॉर्म करना है? yes you have spotted it correctly, हमें फॉर्म करना है औ. औ के लिए हमारे पास o है, एक चीज रेडी है, अभी सिर्फ उसमें थोड़ा सा और मिक्सचर करना है. मिक्सचर किसका करना है? आ का. सो आ प्लस ओ बिकम्स औ. यहाँ पे आप देख सकते हो संधि में लिखा हुआ है आवयोः संयोगेन. अगेन अगेन दिस सन्निकर्ष संयोग वर्ड्स आर रिपीटिंग अगेन अगेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्निकर्ष एंड संयोग? कॉम्बिनेशंस. yes, so the example is गंगा. गंगा मतलब रिवर गंगा, नदी है, ending in a, and next word starts with au, oghah. Sorry, next word starts with o, that is oghah. So a plus o becomes au, ganghaugah. Ogha means flow of river Ganga. Okay, so as you know, the flow of river Ganga is very high, intensity बहुत ज्यादा होती है flow की, and इसीलिए यहाँ पे गंगा plus ओगह गंगौगह ऐसा word use किया है, which is the flow of river Ganga. I hope you till this you know how to frame the a, I, o and au from the swaras. Is it clear? चलो अभी इसको हम थोड़ा नोटबुक में नोट डाउन करते हैं रूल्स को. फॉर दैट आई एम शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड हियर एंड आई एम राइटिंग समथिंग. यू हैव टू आल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. देखो सिंपल याद रखना है, अभी एकदम सिंपल बता देती हूँ कैसे कैसे करना है. सबसे पहले हमने लिया था अ गणेशः में. ओके, गण एंड्स इन अ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ई. अभी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, कभी कभी शॉर्ट ई भी हो सकता है, कभी कभी लॉन्ग ई भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ई के फैमिली का कोई भी रहने दो. यहाँ पे हमारा कंडीशन अप्लाई क्या है? कंडीशन इज डिसिमिलर फैमिली के वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, और वो भी कौन से? वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अ, वन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ई. फिर वो शॉर्ट एंड लॉन्ग कोई भी होगा तो भी चलेगा. अभी हमने अ प्लस ई कलेक्ट कर लिया. अ प्लस ई का कॉम्बिनेशन बनता है ए. सो माई ए इज रेडी नाउ. अभी ए को मुझे यूज तो करना ही है फॉर फ्रेमिंग आई, बट उसके साथ मुझे क्या ऐड करना है? एनी वर्ड फ्रॉम any letter from the family of a. So मैंने यहाँ पे आ लिया है because सदा plus एव ऐसा मेरा संधि था in the textbook. So a plus a becomes I. Students, but इसको लिखते वक्त हमेशा याद रखो, अगर मैं a का एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ which is गणेशः, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि a के लिए I have written only one मात्रा, and for I have written, just a minute, for I have to written two matras. So I will write the example as दैव. मतलब दो ये आई दिखने में एक मात्रा के साथ है, बट एक ही एक मात्रा, और उसके ऊपर मैं आपको स्पॉटलाइट से दिखा देती हूँ. ए का एक मात्रा और उसके ऊपर जो एक मात्रा, ऐसे मिला के यहाँ पे मैंने दो मात्रा दी है. एंड फॉर गणेश ओनली ए इंडिकेट्स मात्रा. ए इंडिकेट्स मात्रा. यहाँ पे ए ऑल्सो इंडिकेट्स मात्रा, और ए के ऊपर ऑलरेडी एक मात्रा है. सो देयर आर टू मात्रा. सो दिस इज ए एंड दिस इज आई. ए एंड आई. इसको याद कैसे रखना है, कैसे फ्रेम होता है? तो सिंपली देखो, एकदम आपके रिलेटेड एग्जाम्पल. सपोज अभी ये जो अ एंड ई है, अ एंड ई को हम इमेजिन करते हैं कि अ इज यू कैन से द बर्गर का ब्रेड. ओके, बर्गर का ब्रेड है अ, एंड ई इज आलू टिक्की बिटवीन द बर्गर. अ इज ब्रेड ऑफ बर्गर एंड ई इज आलू टिक्की बिटवीन द बर्गर. अभी दोनों को कंबाइन कर देते हैं, हमारा कंप्लीट बर्गर रेडी है, दैट इज ए. ओके, सो बर्गर इज रेडी नाउ. अभी बर्गर के साथ मुझे कुछ कॉम्बो मील करना है. सो आई वांट टू कोक. तो ए के साथ यानी कि बर्गर के साथ आई हैव एडेड कोक आल्सो इन माय व्हाट यू कैन से माय ऑर्डर. और वो ऑर्डर में अगर मैंने ये कोक भी ऐड कर दिया, देन आई एम गेटिंग अ कॉम्बो मील, एंड दैट इज आई. व्हाट इज आई? आई मींस मेरे पास कोक भी है एंड आई आल्सो हैव अ बर्गर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर देयर इज ओनली बर्गर, एंड बर्गर में कोक मिला दिया तो हो जाता है कॉम्बो मील. तो हमें याद रखना है A is only a combination of A and E and I is a combination of A plus A. जब मेरे पास एक रेडी है तभी उसमें ऐड करके मैं कॉम्बो बना सकती हूँ. Then चलो quickly write down these rules. A plus E is equal to A and A plus A is equal to I. Sometimes देखो यहाँ पे E दीर्घ भी हो सकता है.
यहाँ पे अ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आ ही होना चाहिए। आई एम सेइंग कि एक फैमिली में से कोई भी एक बंदा वहां पे काम करने के लिए आ सकता है। ओके, एनी वन लेटर फ्रॉम द डिसिमिलर फैमिली कैन परफॉर्म द फंक्शन। यहाँ तक सब क्लियर है? शैल आई रब दिस? Oh, Samina is feeling hungry with the example of burger and a coke. That's quite good, but still you have to write down the sandhis first. And the example just to correlate with it कि आपको burger और coke खाते वक्त याद आए कि a plus c is equal to a and r plus a is equal to I. Okay, so I'm rubbing all these things. Now we have to move ahead. Same thing हम लोग अभी करते हैं for O. अभी example में repeat नहीं करूंगी, same example को imagine करना है। अभी O कैसे form होता है, तो जैसे कि हमने देखा the first word lumber ends in O, उदर starts with U and then हो जाता है O, लंबोदरः का O। अभी O मेरे पास ready है, right? तो अभी मुझे सिर्फ O में क्या ऐड करना है, अ और आ ऐड करेंगे तो बन जाएगा औ। ठीक है, इस टाइम में भी मैंने यहाँ पे मेरा कोक, यहाँ पे मेरा बर्गर पहले ही रेडी था, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। ओके, मे बी चिकन बर्गर, दिस टाइम नॉन वेज उ आ गया है, इसके लिए मे बी इमेजिन करते हैं नॉन वेज बर्गर। देन द नॉन वेज बर्गर के साथ मुझे कॉम्बो मील करना है, इस बार मे बी फ्रेंच फ्राइज आई वांट एंड हेंस आई हैव एडेड आ। सो फ्रेंच फ्राइज प्लस बर्गर बिकम्स माय कॉम्बो मील, दैट इज औ। सो आ प्लस ओ बिकम्स औ। ओके, एंड हमने दो एग्जांपल्स देखे, लंब प्लस उदरः लंबोदरः, and then we have seen ganga plus ogah gangaugah। वहां पे please note down the meaning of it, flow of river ganga, gangaugah। चलो, I'm clearing the board now। Yes, again we are going to the same document, just 1 second। yes, तो अभी टोटल हमारे 8 रूल्स यहाँ पे सीख के हो गए, 8 रूल्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लास्ट 2 रूल्स हमें सीखने फॉर द डे। उसमें से पहला रूल है यदा मम संयोगे संयोगः स्वरेण भवति। ओके, संयोगः अभी तो बाय नाउ यू ऑलरेडी, कॉम्बिनेशन मेरा मिक्सचर अगर स्वर के साथ हो जाता है, कौन बात कर रहा है ऐसा? ई बात कर रही है हमारे साथ। द वोवेल ई इज सेइंग दैट इफ आई एम गेटिंग कंबाइंड विथ एनी स्वर एक्सेप्ट ई और ई, वर्जयित्वा मतलब एक्सेप्ट, अगर ई और ई को छोड़कर, मेरे मतलब मेरी फैमिली में से मेरी जो बहन है उसको छोड़कर मैं अगर किसी भी और स्वर के साथ कंबाइन हो जाती हूँ, देन मम परिवर्तनम, देन आई चेंजेस टू य, देन मेरा परिवर्तन किसमें हो जाता है? य में। मतलब सिंपल हमें नोटबुक पे रूल लिखना है, ई चेंजेस टू य व्हेनेवर इट इज कंबाइंड विद एनी स्वर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, whenever e is combined or followed by any swar except e or e, then e changes to y। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एंड ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल है करो मी। अभी ये जो वर्ड है करो मी, यू कैन लिसन इट केयरफुली दैट करो मी ends in e and the next word starts with a। और आपने सुना होगा कि मैं हर एक लेक्चर में जब भी हम कोई पोएम या फिर लेसन सीखते हैं, तभी मैं हर बार बोलती हूँ ई अ को अगर हम रिपीटेडली बोलेंगे य बिकम्स य बिकम्स य। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। एंड इफ यू नो द नेम ऑफ रूल, हमारे लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं बेबी डॉल संधि। व्हाई? बिकॉज बेबी डॉल के गाने में स्टार्टिंग में क्या आता है? यही तो आता है, एंड इसीलिए e plus a becomes year। ऑफ कोर्स, बट एग्जाम में हमें बेबी डॉल नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है? e changes to year, e changes to year। करोमी प्लस अहम करोम्यहम, आप ऑब्जर्व कर सकते हो करोमी का जो ई है उसको हमने टाटा बाय बाय कर दिया, उसके जगह पे आ गया है य। एनी डाउट टिल हियर? थोड़ा डिफिकल्ट संधि है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैं व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के बता देती हूँ आपको आफ्टर दिस। ओके, बस अभी थोड़ा राइट साइड में देखना है हमें। सेम संधि है बट थोड़ा लेटर चेंज हो रहा है, अलग फैमिली का बंदा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज ऊ। ओके, ऊ कहता है अगेन, ऊ का भी सेंटेंस सेम है। इफ आई गेट कंबाइंड विद एनी स्वर, अगर मैं कोई भी स्वर के साथ कंबाइन हो जाता हूँ, एक्सेप्ट फ्रॉम माय फैमिली, मेरे फैमिली को छोड़कर, मतलब रस्व और दीर्घ ऊ के साथ में कंबाइन नहीं होऊंगा, एक्सेप्ट दैट में कोई और स्वर के साथ कंबाइन हो जाता हूँ, then I change this to v. V. Okay, half v. Yes, perfect. So u changes to v. अभी एग्जाम्पल देखते हैं। खलु प्लस एतत becomes खलवेतत। You can observe खलु का जो ऊ है, ऊ चला गया, अगेन हमने उसको घर पे भेज दिया, टाटा बाय बाय, काम हो गया। उसकी जगह पे हमने किसको ऐड किया? व को ऐड किया है। सो खलवेतत। चलो, अभी जिनको नहीं समझा उनके लिए आई एम अगेन राइटिंग इट ऑन व्हाइट बोर्ड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आप यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ द संधि ऑफ ई। संधि कुछ इस तरह से था कि ई के बाद ई शुड बी फॉलोड बाय एनी स्वर। ओके, कोई भी स्वर, बट वो स्वर ई के फैमिली के साथ मैचिंग नहीं होना चाहिए। ई शुड नॉट फॉलोड बाय ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ ई। बाकी कोई भी स्वर होगा, अ आ उ ए आई ओ औ, कोई भी होगा चलेगा। देन क्या होता है ऐसे टाइप ऑफ संधिज में? ई चेंजेस टू हाफ य, एंड देन य के बाद जो भी वर्ड है, अगर सपोज एव है तो य प्लस एव बिकम्स येव। अगर य के बाद अ है, जैसे मैंने बोल के दिखाया आपको, य प्लस सॉरी हाँ य प्लस अ इज इक्वल टू य, तो य के कुछ भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है ई चेंजेस टू य। हमारा रूल क्या है? ई चेंजेस टू य। ई अ बिकम्स य, ई प्लस अ बिकम्स य। अ के जगह पे मैंने अगर ई लिख दिया, रॉन्ग, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अ के जगह पे अगर मैंने यहाँ पे ऊ लिख दिया, यस रूल अप्लाई हो सकता है, बट मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरा आंसर हो जाएगा य। पहले तो मैं ई को य में लिखूंगी, एंड ऊ है इसलिए मैं उसको उ कर दूंगी। चलो, तो क्विकली आपको लिखना है ई चेंजेस टू य इफ इट इज फॉलोड बाय एनी स्वर एक्सेप्ट short or long e. Last time I'm repeating it again, please note it down. E changes to y. Y कैसे लिखना है वो मैंने लिखा है स्क्रीन पे। If it is followed by any swer except short or long e. Let's move ahead. Last rule देखने वाले, that is a rule of u का change. U changes to v, half v. ओके, एग्जाम्पल में हमने देखा, ये था एग्जाम्पल खलू। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो खलू के नीचे यहाँ पे ऊकार दिख रहा है हमें, मतलब ये वर्ड ऊ में एंड हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड था एतत, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग अगेन वॉवेल से हो रहा है। तो ऊ प्लस ए था, ऊ को मैंने बना दिया वो, और ए को मैंने लिख दिया मात्रा। ए क्या होता है? हमेशा मात्रा। जस्ट अ मिनट, I have to write down short. Yeah. So this is my answer for the sandhi. तो इसीलिए मेरा पूरा वर्ड दिख रहा था खलवेतत। You can observe वो भी बना दिया है और ऊपर मात्रा भी आ गया, तो वो जो ये वो सॉरी ऊ एंड ए था वो कंबाइन हो गया, खलवेतत। Okay, so here we have completed all the sandhis, basically the swara sandhis. Still one sandhi is remaining, which is ayadi sandhi, but we'll see it afterwards. You have to just focus on these sandhis and you have to solve some questions. So I'm showing some questions on the board.
I mean on the screen. Just give me 1 second. Yes, students. So here are some examples. Again, it is from your textbook. So who will going to answer the examples? पहला एग्जाम्पल जो है वो पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है. नव प्लस अपी बिकम्स नवापी. So dash plus atra is equal to tathatra. Yes, Harshit. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes. Can I Harshit, start? आंसर क्या होगा बेटा? Hello. हाँ हाँ. Yes, please. Dash plus atra. Tatha plus atra. Very good, Harshit. Thank you so much. Students, if you have observed कि हर्षित ने हमें आंसर बताया है तथा प्लस अत्र. So why tatha? We can also use tatha, right? Riya is saying no because it's a word. Tatha is a word. Many of you are saying no, no, no. Tatha is the correct word. Why? क्यों सब हर्षित के फैन है क्या? या सब हर्षित के बेस्ट फ्रेंड्स हैं? Yes. So students, यहाँ पे तथा ही यूज करना है. करेक्ट आंसर है हर्षित का. Really well try. So तथा, why तथा? Because संस्कृत में तथा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है. There is no word like तथा, but there is a word like तथा. यथा और तथा. Just as and likewise. यथा means just as, तथा means likewise. So इसीलिए तथा प्लस अत्र. So अभी in while solving these types of examples, मतलब जिसमें fill in the blanks टाइप होगा, वहां पे आपको एकदम फोकस कर what is the word fixing, we have to fix there, and the word should be the meaningful word from the Sanskrit vocabulary. तो इसके लिए थोड़ा रीडिंग करना है हमें. Of course, रीडिंग मतलब क्या? आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक? नॉट एट ऑल. आपको स्कूल में 3 लेसन सिखाए, 4 लेसन सिखाए, 5 सिखाए, वहां तक ही रीड करो. उसमें से ही कोई ना कोई संधि हमें सॉल्व करने के लिए आने वाला है. तो वोकैबुलरी को हमें समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वोकैबुलरी फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ and not from elsewhere. Okay, so हर्षित ने शायद किधर तो पढ़ा था कोई तो लेसन में, मे बी लेसन नंबर 1 और 2, तथा ऐसा वर्ड हमने यूज किया था. तो इसीलिए तथा प्लस अत्र तथात्र. चलो लेट्स मूव अहेड. लेखनस्य प्लस डैश लेखनस्याशयः. Many of you are answering in chat box. Very good. But who wish to answer orally? Yes, Tirtha. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Tirtha. And what is your answer for the third one? Ma'am, Ashayah. Very good. What is the meaning of Ashayah, by the way? Ma'am, Asha. Asha. Okay, okay. ठीक है. Thank you, Tirtha. Welcome, ma'am. Okay, so Tirtha is saying that Ashayah is Asha. Again, Shruti is saying, ma'am, Ashayah means desire. Anybody else can tell me what is Ashayah? देखो, अभी लेखनस्य आशा, लिखने की आशा किसको है भाई? किसी को पेपर नहीं लिखना रहता है. Nobody is interested to give exam at all. वो तो बर्डन लगता है हमें. Then what is आशा? आशा तो डिजायर है. परफेक्ट. आशयः means content. आशयः means yes, your content. मैटर, जो भी आप पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, वो आंसर में आपका क्या क्या लिखा हुआ जो भी मैटर होता है उसको हम कहेंगे आशयः. कंटेंट ऑफ योर आंसर. सो लेखनस्य आशयः, कंटेंट ऑफ द राइटिंग. कंटेंट एडिटर हमने सुना है, उसके लिए ये वर्ड है. नोट डाउन कर लो, नया वर्ड आपको आज पता चला, आशय, कंटेंट. चलो क्विकली मूव अहेड. पिंक कलर का बॉक्स देखना है. ई और ई प्लस ई और ई इज इक्वल टू ई, दीर्घ ई. सो पठति प्लस इति पठतीति.
आप ऑब्जर्व कर सकते हो पठती जो वर्ब है मतलब रीड करना, वो अभी जब कंबाइन हो जाता है इति के साथ तो वो दीर्घ बन जाता है, लॉन्ग बन जाता है, पठती इति। Who will answer for the second one? Dash plus eva is equal to nadiva. Yes. So many of you are ready. Very good. Let's give chance to Ayan. Yes, miss. Namo Namah. Namo Namaha. Dash plus eva is equal to nadiva. Nadi plus Eva equal to Nadiva. Very good. नदी का मीनिंग क्या होता है? River. एंड नदी में दी शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा? Short. शॉर्ट होगा. ओके आयान, थैंक यू सो मच एंड एब्सोल्युटली राइट आंसर. Thank you, miss. यस. तो स्टूडेंट्स, अयान ने जैसे बोला कि नदी का ई ह्रस्व होगा, में पॉसिबल है, बट नदी का ई दीर्घ भी लिख सकते हैं. क्यों पता है? क्योंकि नदी का टेबल अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक्चुअल ओरिजिनल वर्ड नदी इज एंडिंग इन लॉन्ग ई, बट उसका सप्तमी एक वचन हो जाता है शॉर्ट ई. तो अभी हमें यहाँ तो पता नहीं है कि कौन सा लेसन में से है, हमें सिर्फ ग्रामर सॉल्व करना है. सो यू कैन राइट डाउन शॉर्ट ई ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन लॉन्ग ई ऑल्सो. क्यों? बिकॉज नदी के टेबल में दोनों भी वर्ड्स प्रेजेंट है इसीलिए. ओके, सो परफेक्ट आंसर अयान. लेट्स मूव अहेड. परी प्लस डैश इज इक्वल टू परीक्षा. ये परी जो है वो फेरी टेल्स वाली परी नहीं है, इट इज अ उपसर्ग, सफिक्स. Yes, quickly tell me pari plus dash is equal to pariksha. Okay, let's give chance to Jash. Namo Namaha, miss. Namo Namaha, Jash. Teacher, pari plus iksha, e will come small one, pariksha. Very good. And क्या फिर परी और इक्षा का मीनिंग क्या होगा? What is इक्षा? Okay, so pari is upasarga, prefix added here, and pariksha is a test. Let's move ahead. We have to focus on u or u plus u or u is equal to dirgha u. उसके लिए पहला एग्जांपल है गुरु प्लस उपदेश इज इक्वल टू गुरुपदेश, द एडवाइस ऑफ प्रिसेप्टर. अभी डैश प्लस उत्साह वधुत्साह. लेट्स गिव चांस टू रिया. मृणाल, you have already answered in chat box, that is also correct. Yes Riya, what is your answer? Yes, teacher. Vadhu plus Utsaha. वेरी गुड रिया. वधु का धू कौन सा होगा, शॉर्ट और लॉन्ग? First short. शॉर्ट धू. ओके ओके, थैंक यू रिया. Yes, teacher. ओके, सो रिया ने आंसर करेक्ट बोला है, वधु प्लस उत्साह वधुत्साह. बट वधु में धू जो है वो दीर्घ ही होता है. अभी तक हमने टेबल सीखे नहीं है ना, उकारांत भानु धेनु, उसके बाद आता है वधु. तो वधु का धू जो है दीर्घ है. एंड वधु मीन्स ब्राइड. ओके, तो शादी है आज और शादी के लिए जो तैयार हुई लड़की है उसको हम कहेंगे वधु, ब्राइड. उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, तो एक्साइटेड ब्राइड, उसके लिए वर्ड है वधुसाह. चलो लेट्स मूव अहेड. डैश प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भानुर्जा. यस यशवी. हेलो मैम. हेलो मैम भानु Yes. प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भानुर्जा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भानु? हम आई डोंट नो. ऊर्जा, ऊर्जा लाइट. लाइट. ओके ओके, थैंक यू. वेलकम. यस, सो ऊर्जा इज लाइट. करेक्ट, लाइट के बारे में ही आपने सन के बारे में ऊर्जा सुना रहेगा. ऊर्जा इज एनर्जी एंड भानु इज नथिंग बट सन, गॉड सन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, परफेक्ट लाइट मिलती है. सो भानु ऊर्जा, द लाइट ऑफ ब्राइट सन. वेरी गुड. चलो लेट्स मूव अहेड. लास्ट हमें देखना है रू और रू प्लस रू और रू इज इक्वल टू दीर्घ रू. If you are observing, I am saying that दीर्घ रू as रू, not रू. डिफरेंस होता है रू रू.
तो फर्स्ट एग्जांपल है मातृ प्लस ऋणम. ऋणम मतलब बेनेवोलेंस डन बाय मदर. ओके, मदर हैज परफॉर्म मेनी थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस. बचपन से लेकर आज तक हमारी केयर रखना ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. सो इसीलिए यहाँ पे बोला ऋणम, बेनेवोलेंस ऑफ द मदर. अभी नेक्स्ट है पितृ प्लस डैश. हु इज रेडी फॉर द आंसर? Okay, let's give chance to Arnav. Hello, ma'am. Yes, Arnav. Pitru plus dash is equal to Pitrutam. Pitru plus Rutam is equal to Pitrutam. Okay, and what is the meaning of Pitru? Who is Pitru? Sir, ma'am, dad. Okay, dad. And then what is Rutam? Rutam means, ma'am, month. Man. Okay, okay. ठीक है, thank you so much. संधि का आंसर तो परफेक्ट दिया है एकदम अर्णव ने. बट बेटा अर्णव, रुतम का मीनिंग होता है सत्यम. रुतम मतलब सत्यम, ट्रुथ. सो मे बी यहाँ पे पितृ रुतम का मीनिंग होता है द ट्रुथ गिवन बाय गॉड और टोल्ड बाय फादर और द ट्रुथफुल फादर. दोनों भी मीनिंग यहाँ पे हो सकते हैं. ओके, चलो लास्ट संधि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. दैट इज नथिंग बट भ्रातृ प्लस डैश भ्रातृषभः. भ्रातृ प्लस डैश भ्रातृषभः. यस याशिका. याशिका, please unmute yourself. Hello, Miss. Yes, last answer. Miss, Rushabha, Very good. And what is Rushabha? Rishi. Rishi. Okay, okay. Thank you so much, Yashika. Okay, Miss. Okay, I'm quite happy that you all are at least thinking कि nearby word या उसका meaning क्या हो सकता है हिंदी और मराठी में. Very good. Try always keep trying. So अभी यहाँ पे ऋषभ जो है, if you remember, ये जो है that is the word for a bull. Okay, बैल जिसको हम बोलते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है. अभी यहाँ पे बैल या बुल मीनिंग नहीं लेंगे हम. भ्रातृ के साथ ऋषभ जब मिक्स हो जाता है तो मे बी वी कैन टेक अ मीनिंग कि ये एक राशि है. 12 राशि हम देखते हैं, मेषः, ऋषभः, ओके, कन्या, तनु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें से ये एक राशि है ऋषभः. यस, करेक्ट. साइंस, जोडाइक साइंस. Okay, so here we have already completed all the sandhis and still some examples are remaining on page number 29. Please refer the page number 29. 25 and 29 both pages have these sandhis. So please solve it in your notebook as a homework. And if you have any kind of a doubt, we can discuss in the next lecture. Abhi, before ending the lecture, we have to discuss some things about tables. ओके, सो स्वर संधि का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. प्लीज सॉल्व मेनी मोर एग्जांपल्स फ्रॉम पेज नंबर 25 और 29. ओके, सो हैव वी डिस्कस्ड द टेबल ऑफ भानु, धेनु एंड मधु बिफोर? जस्ट लेट मी नो. नो. ओके, फैंटास्टिक. Okay, okay, no problem. We'll discuss it now and within 5 minutes. So these are the tables which we called as namani. Namani मतलब nouns के tables है. And in Bhanu, the word Bhanu you can observe it is ending in u. And hence उसका जो पूरा नाम है आप black color में देख सकते हो, bold black ऊपर लिखा हुआ है टेबल के ऊपर. भानु means सूर्य, मतलब God sun. राइट साइड में लिखा हुआ है उकारांतम पुल्लिंगम नाम. उकारांतम मतलब एंडिंग इन उ. द भानु वर्ड एंड्स इन उ, इसलिए उकारांत. अंत मींस एंडिंग, उ में एंड होने वाला. उसका लिंग कौन सा है? व्हाट इज द जेंडर? दैट इज पुल्लिंगम, मैस्कुलाइन जेंडर. एंड नाम मींस वो एक नाउन है. तो हमेशा हमें टेक्स्ट बुक में ये ब्ला ब्ला इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड.
वो विशेषण है या फिर नाउन है या प्रोनाउन है, ये सब मेंशन किया हुआ रहता है। सो ऑलवेज बाय लर्निंग जब भी आप रिसाइट करोगे तब ऐसा ही रिसाइट करना कि भानु उकारांतम पुल्लिंगम नाम, देन यू हैव टू रिसाइट टेबल लाइक दिस, भानु भानु भानवः प्रथमा, भानु भानु भानुन द्वितीया, भानुना भानुभ्यां भानुभिः तृतीया, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः चतुर्थी, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः पंचमी, भानोः भान्वोः भानुनां षष्ठी, भानौ भान्वोः भानुषु सप्तमी, हे भानु हे भानु हे भानवः संबोधनम. Okay, so all these words are ending in u if you can observe, and they are forms of bhanu. हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है, जैसे देव के टेबल का होता है वैसे ही इसका भी मीनिंग है. राइट साइड में आप देख सकते हो ब्लू कलर में हर एक विभक्ति लिखी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीया एंड सो ऑन, एंड वी ऑलरेडी नो द फंक्शंस ऑफ विभक्तिज. ओके, ईच विभक्ति परफॉर्म्स सम फंक्शन, लाइक जैसे कि प्रथमा विभक्ति जो है वो हमेशा कर्ता डिनोट करती है, द्वितीय विभक्ति ऑलवेज डिनोट्स कर्म, एंड लाइकवाइज वी हैव टू मूव अहेड विद ईच एंड एवरी विभक्ति. नाउ ये जो वर्ड है भानु, मैं आपको बिफोर एंडिंग द लेक्चर आज बोल देती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले, बिफोर एंटरिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, यू हैव टू लर्न द टेबल ऑफ भानु एंड यू हैव टू राइट डाउन द टेबल ऑफ मनु रेफरिंग द भानु. आपका होमवर्क रहेगा, राइट डाउन द टेबल ऑफ मनु रेफरिंग द भानु, एंड प्लीज डू द होमवर्क ऑनेस्टली बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ. ओके, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी, एंड हेंस प्लीज राइट डाउन द टेबल ऑफ मनु. नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी बोलूंगी कि रीड द टेबल ऑफ मनु. इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट डाउन द टेबल ऑफ साधु. मनु या साधु में से कोई भी एक लिखो, बाकी वर्ड्स जरा ट्राई मत करना क्योंकि उसके ऊपर एक रूल है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Okay, so now just wait, I will show you the meaning of Deva table so that you can have the idea about Bhanu also. Just wait a minute. Okay. So students, if you want, you can take a screenshot of this particular slide because this is highly important slide. एक बार अगर आपने ये समझ लिया ना कि why Deva table is so important in Sanskrit, then आपने सब टेबल को समझ लिया. Okay, then understanding for all the tables is clear if you know well what is the Deva table. तो यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है about Deva table. I will just recollect it. देवः देवौ देवाः प्रथमा. अभी ये जो प्रथमा विभक्ति है उसका मीनिंग है वन गॉड इन एकवचनम, टू गॉड्स इन द्विवचनम एंड मेनी गॉड्स इन बहुवचनम. मतलब ये प्रथमा विभक्ति सिर्फ सब्जेक्ट को डिनोट करती है, कर्ता को डिनोट करती है. अभी नीचे चलते हैं, द्वितीय विभक्ति, टू अ गॉड, टू गॉड्स एंड टू मेनी गॉड्स, देवम देवौ देवाः. मतलब ये द्वितीय विभक्ति जो है टू, ये प्रपोजिशन यूज करती है एंड दिस इंडिकेट्स कर्म. Okay, please take a screenshot of it. Then we have तृतीया विभक्ति. तृतीया विभक्ति में है by और with. prepositions यहाँ पे change हो रहे हैं बार बार. by और with a god, by और with two gods and by और with many gods. आपने अभी तक ऑब्जर्व किया रहेगा कि god, two gods and many gods ये कॉलम में तो सेम है but prepositions are changing everywhere. Why? Because the function of each and every vibhakti is different. कि कोई फंक्शन हमें किसी के साथ परफॉर्म करना है, विथ समवन, ओके, और बाय समवन किसी से करवाना है तो हमें ये तृतीया विभक्ति यूज करनी है. नाउ लेट्स मूव अहेड. वी हैव अ चतुर्थी विभक्ति एंड द मीनिंग ऑफ चतुर्थी विभक्ति इज फॉर अ गॉड, फॉर टू गॉड्स एंड फॉर मेनी गॉड्स. सो नाउ अगेन स्टूडेंट्स, देवाय मींस एक भगवान के लिए, देवाभ्याम दो भगवानों के लिए, एंड देवेभ्य फॉर मेनी गॉड्स मतलब बहुत सारे देवों के लिए और ईश्वरों के लिए. तो यहाँ पे डिफरेंस पता चलता है ऑफ सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, एज वेल एज हमें पता चलता है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रेपोजिशन है फॉर. तो जो भी यहाँ पे रेसिपिएंट होगा, जो भी रिसीवर होगा वो चतुर्थी में होता है.
लेट्स मूव अहेड। पंचमी विभक्ति का फंक्शन होता है सेपरेशन दिखाना, फ्रॉम अ गॉड, फ्रॉम टू गॉड्स एंड फ्रॉम मेनी गॉड्स। मतलब गॉड से मुझे कुछ मिला, ओके तो वो गॉड से सेपरेट होके मेरे पास आ रहा है। इफ गॉड हैज गिवन मी नॉलेज, तो आई हैव कलेक्टेड नॉलेज फ्रॉम गॉड। तो नॉलेज जो है वो गॉड से सेपरेट हो रहा है, दैट इज अ सेपरेशन पॉइंट ऑन, एंड मेरे पास आ रहा है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन डिनोटेड बाय पंचमी विभक्ति, फ्रॉम, 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 from a god, from two gods and from many gods. Finally, we'll move ahead, and that is a Shashti Vibhakti, very simple Vibhakti. Just we use Shashti Vibhakti to indicate relatives. Okay, relation बताने के लिए हम ये Shashti Vibhakti use कर रहे हैं। मतलब she is my student, or she is my teacher, or he is my father, he is my brother, he is my sister. तो ये जो सब हम रिलेशन बताते हैं ना, वही षष्ठी विभक्ति का काम है, ऑफ अ गॉड, ऑफ टू गॉड्स एंड ऑफ मेनी गॉड्स। जैसे कि मैं एक इंग्लिश एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि दशरथस्य पुत्रः रामः। इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं कि द सन ऑफ दशरथ इज राम। यू कैन ऑब्जर्व, सन ऑफ दशरथ, दशरथ का पुत्र है, ये बोलने के लिए मैंने ऑफ यूज किया, एंड संस्कृत में मैंने उसके लिए स्य यूज किया, दशरथस्य पुत्रः रामः। Finally, we'll move ahead. It is सप्तमी विभक्ति. So in, on, at and among, ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं सप्तमी विभक्ति के. So देवे, देवयोः, देवेषु, सप्तमी. So I have faith in God, और यहाँ पे हम अगर यूज करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ देवे, in God. I have a faith in God. देवे निष्ठा अस्ति. Then we have next संबोधनम. हे देव, हे देवौ, हे देवाः, संबोधनम. संबोधनम इज जस्ट संबोधन. संबोधन मतलब कॉलिंग और एड्रेसिंग. अगर मुझे पुकारना है, हम बोलते हैं ना कि हे भगवान बचा ले, तो हे भगवान कोई संस्कृत में हम बोलेंगे हे देव, ओ गॉड सेव मी. So likewise this last vibhakti संबोधन is just to call someone. Okay, so quickly take a screenshot of it, write down. अभी स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? क्योंकि आपको ये टेबल लिखना है नोटबुक में, एज वेल एज आपको जब हमने अभी डिसाइड किया भानु का टेबल, भानु जैसे आप मनु का टेबल लिखोगे, देन यू हैव टू राइट डाउन द टेबल विद द मीनिंग्स. तो इसीलिए मैंने बोला कि व्हाई इट इज अ इम्पोर्टेंट होमवर्क, प्रैक्टिस क्यों होने वाला है, बिकॉज मनु का टेबल सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है मनु मनु मनवः प्रथमा, उसके नीचे मीनिंग भी लिखना है. वन मनु, टू मनूज एंड मेनी मनूज. क्लियर? मनु एक प्रॉपर नाउन है, ऐसा समझो. Okay, Manu was the first man on the earth, so इसीलिए it is a proper noun, and you can write down the meaning as one Manu, two Manus and many Manus. And if you are taking a word sadhu, then you have to write down one sage, two sages and many sages. Okay, homework clear है सबको? And I hope you have taken a screenshot. मीनिंग ऑफ मनु मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ. मनु इज द फर्स्ट पर्सन ऑन द अर्थ. मतलब जहां से आप बोल सकते हो कि हमारी सृष्टि क्रिएट हुई है, तो सबसे पहला कोई मैन था ऑन द अर्थ इज मनु. तो दिस इज द प्रॉपर नाउन, तो उसको एज इट इज यूज करो. वन मनु, टू मनूज एंड मेनी मनूज. ओके, एंड इफ यू आर टेकन द वर्ड साधु, देन यू हैव टू राइट डाउन वन सेज, two sages, many sages. Okay students, so we'll stop here. Thank you so much. I hope you have understood everything about Swara Sandhis as well as the table of Bhanu. We have only completed one table. And still, if you have doubts in Swara Sandhi from page number 29, please be there with your doubts in the next lecture. I will very happy to solve your doubts. Thank you so much, and Punar Milamaha. Bye everyone. God bless you all. Bye. I'm ending meeting here itself.